Yeah, good afternoon, students. Let's start the our practical. Uh, in last lab, we have completed the fourth practical or which practical? To verify fifth practical, I think we have completed Q. Am I right? Or okay. So now let's next one. Okay. So we have completed this one. Implement a queue using array that performs the following operations: insert, delete, and display. That we have completed. Is there any pending up to this one? Then drop message. Okay. So now next one, that's 5.1, because here it's 2 times 5. So just give the number 5.1 and try to implement circular queue. Circular queue using array that performs the following operations. So let's try this one. So first of all, just simply write the void main. That's the same as the practical 5. Simple queue. खाली वर्ड चेंज हो जाएगा सर्कुलर क्यू, बाकी पूरा एज इट इज, नो चेंज इन द void main. Okay, so first of all, type the void main, and then I will write the algorithm or code for the circular queue. So let's open the code block and create a new file. So let's give the name 5.1 equal 5-1 batch. So simply copy this in STL. So first line, that's a normal standard header file stdio.h. Then implement void main, and before that just take the global variable, that's circular queue to CQ size max. So size max define कर देते, has defined max is equal to initially it's a 10, and other two variables, that's front is equal to -1 initially, rear is also -1. So now just simply try to implement void main as per the practical 5 and then try to implement insert. So all of you simply write down the, or means type the void main. Then I will share the algorithm for the insert. So try yourself to implement the insert code for the circular queue, and then next one. Okay, so type the void main.
सर यस बोलो। सर ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये हो गया सर्कुलर क्यू। ऑल ऑफ यू बाकी सबको भी हो गया क्योंकि मेरे पास मैंने इसमें नहीं देखा तो। नहीं 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 क्यों हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ नहीं मतलब मैंने देखो यहाँ से वेरीफाई किया मैं क्योंकि फोल्डर में सी बेस के लिए देखो 5.c है मतलब हाँ हाँ 5.1। माय मिस्टेक माय मिस्टेक। इट्स ओके कोई बात नहीं चलो कोई बात हो गया होगा तो नेक्स्ट वन और बाकी है तो करो। Okay, I am writing the word main here. Menu driven, that sign P is a choice. While one because it's an infinite time. Give the information means give information to the user. Message something like a circular queue. Circular queue using array. Then printf give the options. So one for insert, two for delete, three for display, four for exit. Printf, enter your choice. Scanf, percentage %d and person choice. Then apply the switch case, in the switch case pass variable choice and make the case 1 that for the insert, then break, case 2, delete,
then break S3 display delete में यहाँ पे complete word नहीं लिखना because that's a inbuilt keyword. So write the delete underscore circular queue delete CQ or it may be wrong spelling delete मतलब del something. S4 exit. Default printf invalid choice and complete. Okay, so this is the void main. Now try to implement next one, that's a insert. So void insert and just simply try to recall the insert algorithm for the circular queue. But before that, those who are pending to write void main, complete this one. If you want to reduce the line number, then this bracket will be here. This while bracket also here. Switch bracket. So you can say that the line number is comparatively less. Okay. Those who are pending, try to complete to void main, and then I will set the algorithm for the circular queue. Okay, I hope complete void main. Now algorithm for the circular queue. Let's open this linearity PPT and delete and this is the circular. Okay, so this is the circular queue and these are the number of possible cases or possibilities. For example, insert 8 elements, complete the wall queue, circular queue 0 to 7. Initially, if queue is empty, that means front and rear both are at -1 index. And when you insert first element, then you have to set this both variables at 0. Okay, and normal case, the simply real plus plus and assign that value, real plus plus and assign that value, and up to 7. First case, insert elements. Second case, मतलब इसमें next step delete 2 elements. Then increment front plus plus 2 times and delete this first come first serve. So जो पहले enter वाला 10 and 20 वो दो delete हो जाएंगे और front will be at index 2. Then उसी में insert one element rear plus plus then assign new value. But here 7th index, that is the last index, or you can say that the max -1 and directly plus plus, that means directly go to the 0 क्योंकि 8 तो इंडेक्स है ही नहीं इसलिए उसे 0 पे ले जाना है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. अगर लास्ट इंडेक्स है तो वहां पे 0 पे आना है और लास्ट इंडेक्स नहीं है तो नॉर्मल प्लस प्लस जैसे 3 to 4
4 में से 5 पे जाना, 5 में से 6 पे, एंड सो ऑन। अगेन वन मोर इंसर्ट। तो अभी देखो ये फुल हो गया। तो यहाँ पे जो फुल होने के केस है वो दैट्स अ केस स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 4। दोनों केस में देखो सर्कुलर क्यू फुल है। दैट मीन्स जब भी क्यू फुल होगा तो फ्रंट एंड रियर दोनों साथ में चलेंगे, आगे पीछे। जैसे फ्रंट आगे और रियर पीछे दोनों में देखो, जैसे दिस आर दी केसेस 7 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7। दोनों केस मतलब ये साथ में रहेंगे फ्रंट एंड रियर। इन दिस केसेस वी कैन से दैट द सर्कुलर क्यू इज फुल। तो ये होगी ओवरफ्लो कंडीशन। बाकी नॉर्मल केस में रियर प्लस प्लस एंड असाइन द वैल्यू। और इनिशियली एम्प्टी है तो फर्स्ट टाइम तो फ्रंट को भी जीरो पे लाएंगे, और रियर जब भी प्लस प्लस करते हो तो 7 लास्ट इंडेक्स पे हो तो उससे जीरो पे लाना है। So these are the some special case. Now let's algorithm this one. तो देखो algorithm में क्या लिखते हैं, ये केस फ्रंट इज इक्वल टू जीरो पे है, रियर माइनस मैक्स माइनस ऑन लास्ट इंडेक्स पे है, तो सर्कुलर क्यू फुल है। दूसरी पॉसिबिलिटीज आगे पीछे साथ में चलेंगे, ठीक है। 0 1 1 2 2 3 तो रियर पीछे होगा और फ्रंट आगे। तो उसके लिए लिखा है रियर इज इक्वल टू फ्रंट माइनस 1। देन ये बीच में लिखा है और, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, देन वी राइट ओवरफ्लो। नॉर्मल केस में रियर प्लस प्लस, तो रियर प्लस प्लस में रियर नॉर्मल केस में हम क्या लिखते थे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो इसमें आपको चेक करना है कि अगर रियर मैक्स माइनस ऑन लास्ट इंडेक्स पे है तो रियर इज इक्वल टू जीरो, एल्स रियर प्लस प्लस, ठीक है। स्पेशल केस है कि भाई अगर लास्ट इंडेक्स पे हो तो उसे जीरो पे ले जाना, प्लस प्लस नहीं करना है। और बाकी नॉर्मल केस में प्लस प्लस। ये जो इतनी 3 4 लाइन है उसको कंबाइन करना हो ये कोड को, तो उसमें मैंने पीछे प्लस में आगे लगा दिया मॉड्यूलो। जब भी वो लास्ट इंडेक्स पे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्स कितना है, ये एग्जांपल में 8 है तो लास्ट इंडेक्स 7 आएगा। तो जब भी 7 की बात करते हो तो मुझे जीरो पे लाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स। जब भी ये करो तो लास्ट इंडेक्स पे हो तो 7 प्लस 1 modulo max, that's 8. So again you will get the 0, 8 modulo 8 0। और 7 के अलावा कुछ भी हो तो वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 modulo 8 दैट इज आल्सो 5। 4 में जब भी प्लस प्लस करते तो भी 5 ही आता था। तो ये जो इतना कोड लिखा है इफ एल्स वाला, ये ना लिखना हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट, सॉरी, दिस वन लाइन स्टेप नंबर 2, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स। तो ये हो गया रियर अपडेशन। फिर उसमें स्टेप नंबर 3 वैल्यू स्टोर कर दिया। स्टेप नंबर 4 दैट्स स्पेशल केस कि अगर क्यू पहले से खाली हो तो आपको फ्रंट को भी जीरो पे लाना है। सो दिस इज द इंसर्ट एल्गोरिथम इन अ सर्कुलर क्यू। सो नाउ ट्राई टू इम्प्लीमेंट इंसर्ट फंक्शन योरसेल्फ। उसमें जो न्यू वैल्यू है वो आप यूजर से एंटर करा लेना, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट टाइपिंग। और if any query then you can drop message or tell me.
Okay, now I'm writing this insert. Okay, insert. So first of all, check the overflow conditions. If here is equal max minus 1 and int is 0, ये possible. Second possibility is rear पीछे होगा, तो rear is equal front minus 1. if दोनों में से कोई भी possibilities हो, then we can write overflow. Sorry. Now normal case means it's there is at least one space in a circular cube. Then give the message to the user, enter the value. Scanf percentage %d and person value declare करना बाकी है तो integer value. अब क्या करते हैं इस बार algorithm, what is the steps? Okay, rear plus plus, rear is equal to rear plus 1 modulo max. है ना? अब अन्य वैल्यू सर्कल को में असाइन करना है, मतलब वैल्यू. So variable name array name cq of rear is equal to value. Okay, and special case, if front is equal minus 1, then front is equal to 0. ठीक है, अब यूजर के लिए मैसेज लिख सकते हो कि इंसर्शन डन. दिस इज द इंसर्ट फंक्शन. Okay, those who are pending try to complete, and those who are completed then next one delete. देखो delete में भी अंडरफ्लो कंडीशन empty, और नॉर्मल केस में पहले डिलीट कर दो देन फ्रंट प्लस प्लस. और स्पेशल केस उसमें क्या आएगा कि अगर एक ही एलिमेंट है क्यू में और उसे भी आप डिलीट करने जा रहे हो, तो वो डिलीट करने के बाद तो क्यू एम्प्टी हो जाएगा. तो एम्प्टी होना मीन्स कि दोनों वेरिएबल को आपको -1 पे सेट करना है. दिस इज द स्पेशल केस. ठीक है, कि अगर ये एक ही एलिमेंट है उसको डिलीट करने के बाद दोनों वेरिएबल को -1 पे सेट करना, जो हम नॉर्मल क्यू में भी करते थे. ये उसका एल्गोरिथम. और जिसको ये बाकी है इंसर्ट, वो पहले इंसर्ट कंप्लीट करें. ठीक है, पहले जिसको इंसर्ट बाकी हो कंप्लीट ही करो, क्योंकि मैं स्क्रीन में सब कुछ तो होगा. ओके.
Okay, now delete. First of all, we have to check underflow conditions. If it is equal minus one, आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हो, front and rear both, or it may be any one. And give the message airflow and return. Otherwise, just simply delete. So print that value. Take one variable integer value, and value is equal to q of, कहाँ से delete करते हैं, front से, because first come first serve, and give the message this is deleted. Select the value. Then after deletion, front increment. But before that, special case. If front is equal rear, then front and rear both are at minus one. Otherwise, normal case, front increment, front is equal to front plus 1 modulo max. Right? So this is the delete algorithm. So now you observe this delete algorithm and delete algorithm in normal queue. Only one change, that's a modulo max, line number 35. इतना change है. Delete in simple queue and delete in circular queue. Rest the same as it is without any change. Change is only that here modulo max. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से शायद एक पूछेंगे कि भाई राइट एन एल्गोरिदम और सर्कुलर क्यू सिंपल क्यू, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें खाली इतना ही चेंज है, रेस्ट अदर सेम थिंग. ओके, इतना हो जाने के बाद लास्ट फंक्शन दैट्स डिस्प्ले. तो खुद से ट्राई करो, उसका एल्गोरिदम तो पीपीटी में है ही नहीं. डिस्प्ले में ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे दिस स्टेप नंबर 4 और पॉसिबिलिटीज 4, डिस्प्ले करना है फ्रंट से लेकर रियर तक. ठीक है, केस 1 देखो, स्टेप 1 उसमें फ्रंट से लेकर रियर, सो 0 to 7 दिस इज द नॉर्मल. केस नंबर 2 वो भी नॉर्मल है, फ्रंट से रियर प्रिंट करना. 3 एंड 4 में देखो फ्रंट से रियर जाना है, तो अब 7 के बाद वापस 0 पे आना है. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा लॉजिक सोच लेना. स्टेप नंबर 4, फ्रंट से रियर मतलब फ्रंट बड़ा है 2 से लेके पहले 7 तक एंड देन 0 से 1 तक. ओके, सो नाउ ट्राई योरसेल्फ टू इंप्लीमेंट डिस्प्ले, और बाकी जिसको डिलीट बाकी है वो कंप्लीट करे.
complete up to delete and insert. Okay, yes. Okay, yes. Display also complete. किसी का डिस्प्ले कंप्लीट हुआ? Okay, only one yes. Kevin, okay. So can you share the code for the display function? जिसको डिस्प्ले कंप्लीट हुआ उस बॉक्स में शेयर करो या तो स्क्रीन शेयर करो. Okay, yes. Take your time. Okay, yes. आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? Okay. Display front is equal to -1, then empty, correct. Else I is equal to front. I plus 1 modulo max is not equal to rear plus 1 modulo max. Okay. तो लास्ट में rear एक्सप्लेन किया होगा ना? Yes. Done. अच्छा वहाँ पे चेंज. ये जो लाइन लिखी है प्रिंटफ के बाद उसकी कोई जरूरत है क्योंकि वहां पे आप कुछ असाइनमेंट तो नहीं कर रहे हो. और इट शुड बी आई इज इक्वल टू. अदरवाइज रिमूव कर दो. इट्स मीनिंगलेस. प्रिंटफ के जस्ट बाद वाली लाइन. और आप यहाँ पे वाइल लूप में ऐड कर दो तो भी चलेगा. आई इज इक्वल टू. दिस अदर करेक्ट. so this is the one solutions. Okay. Okay, now next one. इजी सॉल्यूशन बता दो. थोड़ा लेंदी है बट कंपेरेटिवली इजी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द. ओके देखो पहले मैं नॉर्मल केस के लिए आंसर लिख रहा हूँ. केस नंबर यहाँ पे पीपीटी में देखो तो केस नंबर 1 2. वो नॉर्मल केस किस तरह से फाइंड करोगे कि देखो फ्रंट की वैल्यू रियर से छोटी है. फ्रंट लेस देन रियर. तो दिस इज द केस 1 एंड केस 2. केस 3 और 4 में देखो फ्रंट इज ग्रेटर देन कंपेयर टू रियर. तो ये दो केस में बाद में बात करते हैं. पहले केस नंबर 1 एंड 2. ठीक है. सो ओके. This is the normal. Front is equal -1 or rear is equal -1. Then give the message circular queue is empty. Okay, this is the normal thing and return. Sorry, RETURN. हाँ. अब पहले तो प्रिंटर जिसका एक मैसेज दे देते हैं. सर्कुलर क्यू इज. अब चेक करो कि फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रियर. तो फॉर लूप चलाना है. आई इज इक्वल टू फ्रंट
normal case equal -1, 20 is equal -1 or both. Then give the message circular queue is empty. Sorry, circular queue is okay. Then print all the element. Now check for the normal case. If front less than or equal to rear, then simply print all the element from front to rear. Now condition false. That means ये special case case number 3 and case number 4 कि जहाँ पे फ्रंट की वैल्यू रियर से ज्यादा है. तो क्या प्रिंट करना होगा? पहले फ्रंट से लेकर लास्ट इंडेक्स तक 2 to 7 जो भी लास्ट इंडेक्स है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले फॉर लूप लिख रहा हूँ. फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट से ही करना है. आई लेस देन और इक्वल टू मैक्स -1 लास्ट इंडेक्स तक आई प्लस प्लस. प्रिंट कर दो. उसके बाद क्या करना है? लास्ट इंडेक्स में पहुंच जाने के बाद जीरो से चालू करना है और रियर तक जाना है. जीरो से रियर तक. तो अगेन फॉर लूप आई इज इक्वल टू, अब कहाँ से चालू करना है? जीरो से. कहाँ तक प्रिंट करना है? रियर तक आई प्लस प्लस. तो ये हो गया आपका कंप्लीट कोड फॉर द डिस्प्ले. ठीक है. देखो सबसे पहले क्या चेक किया? क्यू एम्प्टी तो नहीं है. अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने एक मैसेज दिया कि सर्कुलर क्यू इज के, उसके बाद मैं सारा एलिमेंट प्रिंट करूंगा. देन चेक नॉर्मल केस. इफ फ्रंट लेस देन और रियर, देन simply print from front to rear all the elements. If condition false, then go to else part. तो मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट फ्रंट से लेके मैक्स -1 तक, मतलब लास्ट इंडेक्स तक, एंड देन जीरो से लेके रियर तक. तो दिस इज द कंप्लीट प्रैक्टिकल 5.1 सर्कुलर क्यू. लेट्स वेरीफाई एग्जीक्यूट दिस. ओके, पहले ही कमेंट करना बाकी है प्रैक्टिकल. इनको कमेंट कर देते हैं प्लेस एंड अगेन ट्राई टू एग्जीक्यूट. या तो पहले मैंने साइज यहाँ पे लिया हुआ है 10. ठीक है. तो ये हिसाब से चलते पीपीटी में जो है उस हिसाब से. पहले केस 1 तो मैं 10 एलिमेंट एंटर कर देता हूँ. इंसर्ट 1 वैल्यू पीपीटी में हो ही एंटर कर दे. हाँ 10 से 18. ओके. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. फिर से इंसर्ट करने का ट्राई करो बट इट गिव द मैसेज ओवरफ्लो, क्योंकि मैंने साइज 10 लिया था तो मैंने 10 to 100 एंटर कर दिया. डन. नाउ डिस्प्ले कर लेते हैं. सो प्रेस 3. यस. 10 to 100. नाउ प्रेस 2. डिलीट. तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दिस क्यू 10 is deleted. Again press 2. 20 is deleted. Now display remaining elements 30 to 100. Done. अब फिर से इंसर्ट करते हैं. ये केस नंबर 3 पीपीटी. तो इंसर्ट करने के लिए प्रेस 1 एंड इंसर्ट न्यू वैल्यू दैट्स 200. फिर से केस नंबर 4 एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट 1 प्रेस 1. नाउ 300. फिर से मैं प्रेस 1 करता हूँ. ओवरफ्लो क्योंकि अब क्यू फुल हो गया. डिस्प्ले करते हैं. प्रेस 3. 3. 30 to 100, then 200, then 300. That means our code is correct. All the operations insert, delete, and display. So I hope clear all of you. If any query, then tell me. अब जिसको ये कोड लिखना हो मतलब करना हो तो कर सकते हो. डिस्प्ले. और अब जो मतलब ये किसने सॉल्यूशन दिखा था? यस. ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. आपको एक फॉर लूप में लिखना हो तो भी लिख सकते हो. पहले इतना लिख लो जिसको बाकी है. और जिसको पूरा कोड कंप्लीट हो चुका हो
फाइल पेज में लिखते जाना और अपलोड करते जाना। जैसे मैं मतलब शेयर कर दूंगा लिंक क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम। तो आप प्रैक्टिकल अपलोड करते जाना धीरे धीरे, वरना लास्ट में एक साथ सब बर्डन एक साथ इकट्ठा होगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम लिखना है, सोर्स कोड, आउटपुट, तीनों चीज लिखना है। और नेक्स्ट ट्राई करना हो तो नेक्स्ट है सिंगली लिंक लिस्ट। तो उसमें पहले सिंगल लिंक लिस्ट में खाली क्रिएट लिस्ट का कोड खुद से लिखो। बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट में। पहले जिसको भी बाकी कंप्लीट करो। और इफ एनीवन फेसिंग एनी एरर एनी ट्रबल देन टेल मी। ओके, ऑलमोस्ट सभी का डन हो चुका होगा। कंप्लीट प्रैक्टिकल दिस वन। ओके, किसी का ये प्रैक्टिकल में कुछ बाकी है? इफ यू वांट टू show the any code, any function, then I can share. Otherwise, next practical. किसी को कुछ भी बाकी है इसमें लिखना? डाउट, void main, insert, delete, display. ओके, क्लियर सभी का?
ठीक है। Then now to close this file, and now next practical, that's a singly linked list. Now to just simply copy and okay, create a new file. Just here, Control S, practical 6, C batch. देखो अब 6 practical, write a menu driven program to implement following operations on a singly linked list. And these are the operations: insert a node at the front, and in a sorted list, in ascending order, delete first, delete before, and delete last. Sorry, delete after. हाँ, तो अभी तो खाली छह ऑपरेशन है, इसमें दो ऑपरेशन ऐड करना है, क्रिएट लिस्ट एंड डिस्प्ले। ठीक है, ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपली क्रिएट लिस्ट। क्रिएट लिस्ट के अंदर हम यूजर से पूछेंगे साइज ऑफ लिंक लिस्ट और साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ, और यू कैन सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट, कि भाई कितने एलिमेंट्स आप एंटर करना चाहते हो। जितने नंबर एंटर करो उतने हिसाब से आप पहले लिस्ट एक बना दो। उसमें दूसरा ऑप्शन अगर यह ना करना हो तो जो मैं कर रहा हूँ कि भाई यूजर को ऐसा बता दो कि एंटर एलिमेंट्स, जितने एंटर एलिमेंट्स का नाम एंटर कर दो, और व्हेन यूजर वांट टू स्टॉप देन एंटर -1। ठीक है, जब स्टॉप होना हो देन एंटर -1, बाकी वो एलिमेंट्स एंटर करता जाएगा, लिस्ट बनती जाएगी। दिस इज द क्रिएट लिस्ट। और डिस्प्ले करने में तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और बाकी ये जो 6 ऑपरेशन दिए वो हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं जिसका आपको ओवरव्यू स्ट्रक्चर बता देता हूँ प्रैक्टिकल 6 का। फर्स्ट लाइन दैट्स हैज इंक्लूड standard header file stdio.h, second header file under library stdlib.h, because we will use the malloc function to create a node in linked list. That's why we have to include this standard library.h. Structure for the single linked list, struct SLL. There are two fields. One is the integer data, and second one address of next node. And starting variable, global variable, that's struct SLL star start, or initially that's a null. एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हर बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो भी मैं ग्लोबली ले रहा हूँ। अब void main, तो void main के अंदर पहले तो एज जो मेनू ड्रिवन बोला तो इंटीजर चॉइस जो हम करते हैं हर बार वही, file 1 infinite time, give the information to the user, that's printf single linked list, and printf one for create a list, printf 2 for, तो उन्होंने जो ऑपरेशन दिया वो कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ, insert runner at the front, copy and paste here, printf third for, then next copy, insert a node at the end, printf fourth one, that's insert a node such that linked list is in ascending order according to information, हाँ obviously according to data, एड्रेस के हिसाब से हमें कुछ सॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, printf 5, next one delete first node, copy, next one
delete I think before, yeah. Then next delete after, enter. Then next one display, last one exit. So press 9, that's an exit. Enter vendor choice, enter your choice, NF, and the in person in person choice variable. इस केस सब स्विच केस में धीरे धीरे केस ऐड करना, अदरवाइज आपको खाली सभी फंक्शन के डेफिनेशन पहले एम्प्टी डेफिनेशन लिखनी होगी या तो डिक्लेरेशन लिखना होगा। तो अभी अभी मतलब धीरे धीरे यहाँ पे मैं वन बाय वन केस ऐड करता जाऊंगा। तो सबसे पहले पता नहीं क्रिएट लिस्ट, देन ब्रेक, डायरेक्टली केस नंबर 9 एग्जिट। क्योंकि अगर आपने सारे केसेस लिख दिए स्विच केस में, मतलब आप सारे फंक्शन कॉल करोगे, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट लास्ट और डिस्प्ले, तो आपको उसकी डेफिनेशन या तो डिक्लेरेशन वर्ड मेन के बाहर लिखना कंपलसरी होगा। बस बेटर है कि एक एक फंक्शन ऐड करते जाएंगे और वेरीफाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अभी वॉइड मेन करंट। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने खाली यूजर को दे दी और मैं खाली एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट वन दैट्स अ क्रिएट अ लिस्ट। यहाँ पे बनाएंगे वॉइड क्रिएट अ लिस्ट। तो पहले अब ये लिख लो एंड क्रिएट लिस्ट खुद से ट्राई करो। चलो जिसको पहले लिखना बाकी है, इतना बना लो वर्ड मेन, start typing from the line number 8। So guys, give me 1 or 2 minutes.
Okay, guys, I am back. So let's continue. Okay, जिसको पहले void main बाकी है complete करो. Structure, then void main, and then try to implement create a list. थोड़ा scroll down कर रहा हूँ, ठीक है? So header file, then structure. Okay, okay, sorry. Yeah, screen is not visible. Yeah, yeah. Wait. Present now. Entire screen. This one. Okay. Uh, yeah. Now I think it's visible. So line number 8. Header file, then structure, and then void main. ठीक है, स्ट्रक्चर इतना लिख दिया होगा तो मैं वो खाली void में अब दिखा रहा हूँ.
Try to implement create a list function. If it is done, then try directly display एंड देन रिमेनिंग फंक्शन, क्योंकि हमें हर एक फंक्शन के बाद वेरीफाई करना होगा कि वो फंक्शन सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले फंक्शन लिखना जरूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट वेरीफाई। कुछ प्रिंट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए पहले क्रिएट लिस्ट एंड देन डिस्प्ले एंड देन रिमेनिंग फंक्शंस वन बाय वन। Okay, word main complete. So let's start the create a list. Okay, still I want to wait 1 or 2 minutes and then I will start.
Okay, anyone have completed the create list, or all of you just simply trying? Yes, complete. Yes, Vartika, Nisargi, Hemali. Okay, so just simply try to complete this create list. It's very easy. जो भी लिस्ट मतलब बनो ऐड करते जा रहे हो लास्ट में ऐड करना है। लास्ट में ऐड करने के लिए आपको जस्ट ट्रैवर्स करना होगा। ठीक है, चलो अभी भी फिर भी 2-3 मिनट ट्राई करो, फिर मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ लिंक लिस्ट एंड देन वी विल राइट द कोड। Okay, let's make the single link list. For example, this one. ठीक है, अभी लिस्ट में मैं खाली 3 ही नोड्स ले रहा हूँ। फर्स्ट वन एड्रेस 1000 एंड 2000 एंड 3000, और यहाँ पे नल कर देता हूँ बिकॉज इट्स अ लास्ट नोड। ये है हमारा स्टार्ट। ठीक, अब क्रिएट लिस्ट में क्या करना है, लास्ट में ही ऐड करते जाना, जो भी वो नंबर एंटर करता जाए यू टू एंटर एट एंड। ठीक है, सो दिस इज योर न्यू नोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू नोड है, वैल्यू एंड इनिशियल इट्स नल। एड्रेस में भी समथिंग 8000, और जो उसका नाम रहेगा दैट्स अ न्यू नोड। ठीक है, एंड ओके, अपडेट द लिंक।
ये लिस्ट है। तो आपको यहाँ पे न्यू नोड ऐड करना है, तो ये जो नल है वहाँ पे अपडेट करना है और आपको लिखना है यहाँ पे 8000। ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे पहुंचने के लिए कैसे, मतलब वहाँ पे मुझे पीटीआर नाम चाहिए, देन यू कैन अपडेट दिस एड्रेस। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो पहले नल था, मतलब वो ट्रैवर्स करना होगा आपको। मुझे यहाँ पे नाम चाहिए पीटीआर। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। पीटीआर को ट्रैवर्स करने के लिए पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट व्हाइल लूप। कहाँ पे स्टॉप होना है? ये नोड पे जिसके नेक्स्ट में नल आता हो। ठीक है। सो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। नल नहीं आता है तो प्लस प्लस करना है। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। जैसे ही वो नल आ जाएगा देन स्टॉप। देखो सबसे पहले पीटीआर में क्या आएगा, तो क्या 1000 का नेक्स्ट चेक करो, तो उसका नेक्स्ट में देखो 2000 है। तो 2000 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। और नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, पीटीआर इज टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। सो पीटीआर में बन जाएगा यहाँ पे 2000 का नेक्स्ट चेक करो 3000। यस। तो 3000 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर बिकम नाउ 3000। अब उसका नेक्स्ट चेक करो, तो उसका नेक्स्ट में क्या है, तो नल। नल इज नॉट इक्वल टू नल, नल नल नहीं है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो पीटीआर आपका यहाँ पे लास्ट में स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके जो नेक्स्ट में है आपको लिखना है 8000। ठीक है। जैसे वो 8000 लिखोगे देन दिस लिंक विल बी जनरेटेड। तो वहां पे लिखने के लिए पीटीआर ऑफ नेक्स्ट कहाँ पे लिखना है, तो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट क्या लिखना है, 8000 मीन्स न्यू नोड इतना करना है। उसके नेक्स्ट में तो नल है ही क्योंकि वो तो लास्ट नोड है। तो पहले आपको ट्रैवर्स करना है एंड देन राइट वन line to insert a node at the end. Okay, now try to complete the create a list. Okay, again give me 1 minute. Okay, now back. ये है आपका लॉजिक। ठीक है। And now try to complete the function create a list. Okay, now I'm writing this code. Okay. सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू नोड, सो स्ट्रक्ट सिंगल लिंक लिस्ट स्टार न्यू नोड। और सबसे उससे भी पहले एक मैसेज दे दो, मतलब यूजर को, कि एंटर एलिमेंट्स और एंटर -1 टू स्टॉप। मैं खाली यूजर को भी मैसेज दे रहा हूँ कि भाई एंटर एलिमेंट्स करो और जब स्टॉप होना तो -1 एंटर कर दो।
ठीक है, चलो इतना मैसेज देने के बाद नाउ एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर अ वैल्यू, स्लैश एन दे देता हूँ, स्कैन कर लेते हैं, परसेंटेज डी एंड परसेंट वैल्यू। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये वैल्यू -1 हो तो स्टॉप हो जाना है, तो कुछ नहीं करना है, और अगर -1 नहीं है तो हमें उसको लिंक लिस्ट में ऐड करते जाना है। तो चेक व्हाइल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो लिस्ट में ऐड करने के लिए पहले तो न्यू नोड बना देते हैं, तो न्यू नोड allocate the memory using malloc. What is the syntax for the malloc? That's a number of element into size of that element or size of that data type. अब नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे तो यहाँ पे अभी एक ही नोड क्रिएट करना है, तो 1 इंटू, यू कैन राइट हियर 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सी होगी? स्ट्रक्ट एस डबल एल एंड सेमीकोलन। डबल एक ही है, एक और मल्टीप्लीकेशन में 1 ना लिखो तो भी चलता है, तो आई जस्ट सिंपली रिमूव 1 इंटू स्टार, वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब वो एड्रेस रिटर्न करेगा, वो एड्रेस होगा जेनरिक पॉइंटर, वर्ड पॉइंटर, यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है, उसके लिए आपको कास्टिंग करना है, एस डबल एल स्टार। ये हो गया हमारा न्यू नोड क्रिएशन। अब चेक कर लेते हैं भाई क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो रिटर्न नल करेगा, न्यू नोड इज इक्वल इक्वल नल। अगर वो नल आया दैट मीन्स मेमोरी अवेलेबल नहीं है, सो मेमोरी नॉट अवेलेबल एंड रिटर्न। आपका जो भी डिवाइस है उसमें मेमोरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अलोकेट मेमोरी मीन्स अलोकेट कर ही नहीं रहा है, रिटर्न नल कर रहा है। ठीक है, बट ये चांसेस बहुत ही कम है। जैसे हमारे सिस्टम में बात करें, हमारे पास जो लैपटॉप और सिस्टम होता है उसमें अवेलेबल होता ही है। हाँ, अगर आप कुछ पर्टिकुलर डिवाइस यूज करते हो जैसे टैबलेट और उसमें कम मेमोरी है तो मे बी पॉसिबल रिटर्न नल। ओके, चलो अब अलोकेट हो जाता हो तो उसमें असाइन कर देते डेटा इज इक्वल टू वैल्यू जो यूजर ने एंटर किया था, देन इनिशियली न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट दैट्स अ नल। तो ये हो गया न्यू नोड क्रिएशन। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि अगर लिस्ट पहले एम्प्टी है, इनिशियली लिस्ट इज एम्प्टी, सो हाउ वी कैन वेरीफाई। लिस्ट में हमारे वेरिएबल है ग्लोबल, दैट्स अ स्टार्ट। तो चेक करो, इफ स्टार्ट इज इक्वल नल देन लिस्ट इज एम्प्टी इनिशियली एंड स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो तुम्हारा न्यू नोड है उसी को हमें स्टार्ट बोलना है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट नोड। क्लियर? अगर लिस्ट में एक से ज्यादा नोड है तो एल्स पार्ट हमें लास्ट में ऐड करना है। तो लास्ट में ऐड करने का लॉजिक जो मैंने यहाँ पे एक्सेल में एक्सप्लेन किया वो दिस वन, कि आपको पहले पूरा लिस्ट ट्रैवर्स करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से, you have to reach at the end last node and then add new node at the end means last node। तो आप जो लास्ट नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर दोगे। ठीक है, तो यही लॉजिक मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट while लूप ptr ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। आपको प्लस प्लस करना है, ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट। आफ्टर दी while लूप ptr ऑफ लास्ट नोड पे पहुंच गया तो ptr के नेक्स्ट में क्या लिखना है, तो न्यू नोड का एड्रेस, दैट्स अ न्यू नोड, इंसर्शन कंप्लीट। तो ये हो गया लास्ट नोड, मतलब लास्ट में ऐड करना हो गया। अब कुछ नहीं, नेक्स्ट नोड, सो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू। फिर से मतलब यूजर को जब नई वैल्यू दूसरी वैल्यू एंटर करेगा, एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट वैल्यू। फिर से वाइल लूप रिपीट, देखो वाइल लूप का ब्रैकेट है लाइन नंबर 45 वाला। फिर से वो चेक करेगा जो यूजर ने एंटर किया -1 है तो स्टॉप, अगर -1 नहीं है तो फिर से एक न्यू नोड क्रिएट करेगा एंड सेम चीज रिपीट।
अप टू दी जब -1, जब तक यूजर -1 एंटर नहीं करता है तब तक। तो दिस इज द create a list. Any query in this function? Any doubt? हाँ, यहाँ पे ptr डिक्लेयर करना बाकी है, वो कर दो न्यू नोड के बाजू में स्टार ptr। Any query, any doubt? हाँ, one more thing, see in the else part, ये जो लास्ट में मतलब लिस्ट ट्रैवर्स करने का जो लॉजिक लिखा है while लूप से, 3 लाइन की जगह पे आप एक सिंगल लाइन भी लिख सकते हो यूजिंग फॉर लूप, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों चीजें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। फॉर ptr इज इक्वल टू स्टार्ट सेमीकोलन, कंडीशन लिखते हैं ptr of next is not equal to null, ptr plus plus, so ptr of next, और लास्ट में सेमीकोलन कर दो। सेमीकोलन मींस वो लूप के अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी लूप है, ठीक है। तो लूप खाली पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, बट उसमें कुछ होगा नहीं, जस्ट खाली ट्रैवर्स करना है। हाँ, इसमें सेमीकोलन करना भूलना नहीं, अगर सेमीकोलन नहीं करोगे तो ये अलग ही कुछ मीनिंग हो जाएगा। ये 3 लाइन्स ना लिखना हो तो ये यू कैन राइट ओनली 1 लाइन यूजिंग फॉर लूप। I want to write that one, so simply remove this। कि थोड़ा लाइन कम रहा, आपको लगे कि नहीं प्रैक्टिकल छोटा है, क्योंकि एटलीस्ट 200 लाइन्स तो होने वाली है प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब चलो जिसको बाकी है पहले कंप्लीट करो क्रिएट लिस्ट, और जिसको हो चुका हो नेक्स्ट करो डिस्प्ले। अब मैं कोड डिस्प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम लाइन नंबर 17।
डन, इतना टाइप हो गया। रिमेनिंग अप टू द लाइन नंबर 43, इतना टाइम मतलब टाइपिंग होने के बाद ट्राई नेक्स्ट ऑन डिस्प्ले एंड देन रिमेनिंग फंक्शंस। ओके, डन दिस फंक्शन। किसी को बाकी है? ओके डन। ओके देन डिस्प्ले फंक्शन लिख रहा हूँ। डिस्प्ले में तो इट्स वेरी इजी, सिंपली आपको देखो ट्रैवर्स ही करना है, बट ट्रैवर्स करने में ध्यान रखो कि आपको लास्ट नोड पे स्टॉप नहीं होना है। ठीक है, लास्ट नोड एग्जीक्यूट करना है एंड देन यू टू स्टॉप। जैसे कि ये लास्ट नोड है पीटीआर नल, पीटीआर यहाँ पे स्टॉप करना होगा नल पे, पीटीआर यहाँ पे आना चाहिए लास्ट। तो कंडीशन में इतना चेंज करना है कि while ptr इज नॉट इक्वल टू नल। अगर हम पहली वाली कंडीशन चेक करोगे पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, तो इसमें 10 20 प्रिंट होगा, 30 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। बट आपको लास्ट नोड पे स्टॉप नहीं होना है, यू हैव टू प्रिंट लास्ट नोड ऑल्सो एंड यू हैव टू स्टॉप एट द नल। दैट्स व्हाई पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। बाकी ये तो बस ये ट्रैवर्स करने का पूरा लिस्ट प्रिंट करना है। पहले चेक कर लो लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void display, पहले चेक करता हूँ if start is equal null, then give the message list is empty, else printf list is and for loop चला लेते हैं। ptr से स्टार्ट करते हैं। ptr is starting, ptr is not equal to null, ptr plus plus, और उसके अंदर एक लाइन सिंपली printf ptr ऑफ डेटा। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले फंक्शन, उसमें बस ptr डिक्लेयर करना बाकी है। एस डबल स्टार ptr। सो दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। ये चेक करो, हाँ नल में एन यू डबल एल, आई जस्ट फॉरगॉट। ओके, start is equal null, then give the message list is empty, otherwise traverse the list and print all the data। ठीक है, भले एक और लिखना बाकी रहे, हम नेक्स्ट लैब में यही से कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। अगर टाइम हो अभी लिख टाइप कर पाओ तो कर दो क्रिएट एंड डिस्प्ले, तो नेक्स्ट लैब में इसके बाद वाले फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे हम।
वॉइड मेन के अंदर स्विच केस में ये डिस्प्ले का केस ऐड करना बाकी है, वहाँ पे लिख देना वोटे और जो भी नंबर है, आई थिंक 8. सो केस 8, कॉल द डिस्प्ले फंक्शन एंड देन ब्रेक एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट इंस्टेंट एंड डिस्प्ले सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कुछ एरर आ रही है तो नेक्स्ट लैब में हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो तब ऐसा सोल्व कर देंगे. दिस इज द प्रैक्टिकल 6. ओके, मैं यहाँ पे वॉइड मेन में कैसे ऐड कर देता हूँ. इस नंबर 8 डिस्प्ले also add default enter invalid choice. ये हो गया void main and hello, now clear, maybe from your side or it may be from नहीं my side it's network okay. Anyway, just कोई बात नहीं, मैं यहीं से हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे. अब मैं बस अटेंडेंस ही ले रहा हूँ. तो void main में आप खाली डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा दो केस नंबर 8, डिफॉल्ट भी ऐड कर दो डिफॉल्ट केस. ये था डिस्प्ले फंक्शन एंड क्रिएट लिस्ट. स्टिल एनी क्वेरी देन वी कैन सॉल्व इन नेक्स्ट लैब. मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप चाहो तो, बाकी डायरेक्टली नेक्स्ट फंक्शन में. और नेक्स्ट फंक्शन में भी इंसर्ट एंड तो आने ही वाला है, तो पीछे ऐड करने का लॉजिक तब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके. हाँ बट ये कोड संभाल के रखना, नेक्स्ट लैब से वहीं यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ओके, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ एंड आई थिंक नाउ इट वॉइस क्लियर और इज देयर एनी सी पूजन. पूजन आर यू देयर? हेलो. ओके गाइस, माय वॉइस इज क्लियर. यस, ओके ओके, तो मैं भी फ्रॉम. हाँ ओके, उनके साइड से प्रॉब्लम होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ. तो टर्मिनल ये कोड ब्लॉक डन. अरे यार, सिलेक्ट सी बैच. today's date 10th October and minimize the screen. Okay, Pujan present, Pratika present, Nisarg present, Hemali present. Yes, present. Kevin था तो सही. Yes, sir. Yes, yes. Keyur, yeah, present. Shubham, from Gadia and Goswami.
चलो गोस्वामी साहब प्रेजेंट है, कुंज, देवेन, नेहिल, ओके, जय, अदिति, ओके, सो शुभम गढ़िया एब्सेंट, कुंज एब्सेंट, देवेन एब्सेंट, जय एब्सेंट एंड अदिति। इसमें से कोई प्रेजेंट हो तो बोलो, रेस्ट अदर थैंक यू गाइस, यू मे लीव, सी यू इन नेक्स्ट लैब नेक्स्ट लेक्चर। Stop recording.